Good morning, dear student. Good morning, good morning, good morning. Okay, we have completed glycolysis. है ना. We are talking about respiration in plant. यानी कि हम वनस्पति में श्वसन की बात कर रहे हैं. और वनस्पति में श्वसन, you know that there are two types of respiration. Cellular respiration, yes. है ना. कोशीय श्वसन दो प्रकार के हैं. एक चारक श्वसन, एक अचारक श्वसन. Right? Okay. Respiration are of two types. See, we have discussed about this. Aerobic respiration and anaerobic respiration. You know that the first phase of both of these, that is glycolysis. Here it is glycolysis, and over here this is the first phase. Yes. Now second phase, you know that in aerobic respiration, that is Krebs cycle. And last one is oxidative phosphorylation, right? But here fermentation. Sorry. Okay, fermentation देखो. 14 नंबर के चैप्टर में यानी कि वनस्पति में श्वसन और श्वसन भी हम कोशीय श्वसन की बात कर रहे हैं. કોષમાં જે શ્વસન થાય એની આપણે વાત કરીએ છીએ, રાઈટ. જારક શ્વસન અને અજારક શ્વસન. जो બે પ્રકારના શ્વસન, दो तरह के है रेस्पिरेशन. दोनों में फर्स्ट फेज कौन सा था? ग्लाइकोलिसिस. एंड दैट वी हैव कंप्लीटेड. एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस यू नो दैट टू मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स आर फॉर्म. ગ્લાયકોલિસિસના અંતમાં શું બને? બે પાયરુવેટ બને, રાઈટ. નાઉ વોટ ઇઝ ધ ફેટ ઓફ ધીસ પાયરુવેટ ધેટ वी हैव डिस्कस्ड, राइट. ओके, तो पायरुवेट का आगे क्या होगा? अगर पायरुवेट कणाभ सूत्र में गया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो क्रेब्स साइकिल होगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा. अगर क्रेब्स साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में से पास नहीं होएगा तो क्या होगा? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा तो क्या होगा? फर्मेंटेशन. यस. तो आज हम ये पोर्शन कंप्लीट कर देते हैं. फर्मेंटेशन. Today we are going to discuss about fermentation, the second phase of anaerobic respiration. Yes, आत्वण की क्रिया की बात करेंगे हम आज. Glycolysis we have completed and now next phase of anaerobic respiration, that is fermentation. Glycolysis પહેલો તબક્કો અજારક શ્વસનનો અને હવે આત્વણની એટલે કે બીજા તબક્કાની વાત કરીએ. That is given by Cruikshank and Pasteur in 1898. See, हमारे टेक्स्ट में दो टाइप के फर्मेंटेशन दिए हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. हम बात करेंगे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. बिफोर दैट ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ था वो हम याद कर लेते हैं. यस, मुझे चौक चाहिए कलरफुल, राइट. इसके बिना अधूरा रहेगा. ओके, चलो चलो. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमें देखना है. लिख रही हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक आत्वण. ग्लूकोज 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल. लिख रही हूँ मैं यहाँ पे C6 H12 और 6. ओके, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल glucose. At the end of, see, it is partially oxidized during glycolysis, and that is
2 pyruvate, 2 molecules of pyruvate. I'm writing over here 2 molecules of pyruvate. CH3 CO COOH. Yes, पाइरुवेट. ये मैंने पाइरुवेट का मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है. पाइरुवेट थ्री कार्बन कंटेनिंग मोलिक्यूल. यू नो दैट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस क्या हुआ था, याद कीजिए. ये ग्लूकोज, then glucose get converted into the glucose 6 phosphate and then fructose 6 phosphate. then क्या हुआ था, fructose 1,6 biphosphate. Okay, and then it's split down into 2, PGAL and DHAP. Phosphoglyceraldehyde and dihydroxyacetone phosphate. But you know that this one is get converted into the PGL, then we can get 2 molecules of phosphoglyceraldehyde. Okay, here I'm writing 2 molecules of phosphoglyceraldehyde and then 1,3 biphosphoglyceric acid by PGL. Listen, मैंने जो करवाया था हमने डिटेल में देखा था. अब मैं जो टेक्स्ट में दिया है ना इन शॉर्ट वही लिख रही हूँ. हमने तो बीच में एक स्टेप लिखा था 1,3 biphosphoglyceraldehyde, but now I'm not writing that point. But 1,3 biphosphoglyceric acid, then 3 phosphoglyceric acid, and then 2 PGA, then PEP, and then pyruvate. तो वही हमने लिखा है. सी 2 molecules ये वही लिखा है कि ग्लूकोज गेट कन्वर्टिंग टू दी पाइरुवेट एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस. देखो मैंने ग्लाइकोलिसिस ही लिखा है यहाँ पे. एक ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पाइरुवेट में. बट ड्यूरिंग विच यू नो दैट ओवर हियर 1 ATP is utilized, over here 1 ATP is utilized. So in 2 steps you know that 2 तबक्के में क्या हुआ था, एटीपी का वपराश हुआ था, यूज हुआ था, है ना. यहाँ पे यूज अप हुए थे 2 ATP, बट यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 2 ATP बने थे, याद है. Here we can get energy in the form of 2 molecules of ATP at 2 steps, you know that. But यहाँ पे साथ में 2 NADH2 भी बने थे from 2 NAD. Clear? See 2 and 2 यानी कि 4 ATP, बट 2 यूज अप हुए थे -2 यानी कि नेट ATP अगर हम बात करें तो 2 ATP नेट मिले थे. और वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. सी यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स ATP के बने ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस और 2 मोलिक्यूल क्या बने थे, NADH2 के. 2 NAD get convert into the 2 NADH2. क्लियर. ये ग्लाइकोलिसिस. अभी मैंने फर्मेंटेशन स्टार्ट नहीं किया डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया. ये क्या लिखा है, मैंने ग्लाइकोलिसिस ही लिखा है. नाउ वी विल स्टार्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. यस, हाँ. सी अप टू हियर ये ग्लाइकोलिसिस ही था. कहाँ पे लिखूं, ओके, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस था. ओके चलो. नाउ सी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करनी है हमें. बाय यीस्ट द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अचीव्ड अंडर द एनारोबिक कंडीशन बाय सेट ऑफ रिएक्शन, है ना, वेयर पाइरुवेट इज रिड्यूस्ड इनटू द इट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू द CO2 and ethanol.
वो किस में कन्वर्ट होगा? पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? पाइरुवेट इथेनॉल में कन्वर्ट होगा। यीस्ट के द्वारा ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो यीस्ट में, यीस्ट यानी कि फंगस, इसका एग्जाम्पल किस में होगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। यहाँ पे लिख रही हूँ कि एग्जाम्पल इसका अगर हम बात करें तो क्या? यीस्ट। चलो यीस्ट में होगा। प्लांट सेल वी कैन से, राइट? वनस्पति कोश में, यीस्ट में। यीस्ट में क्या होगा? तो यीस्ट में ये ग्लूकोज में से दो पाइरुवेट बने हैं, पाइरुवेट का सेट ऑफ रिएक्शन। अभी 1 और 2 स्टेप में हम लिखेंगे ये रिएक्शंस। तो उनके द्वारा किस में कन्वर्जन हो जाएगा? तो कि भाई पाइरुवेट इथेनॉल एंड CO2 में कन्वर्ट होगा। पाइरुवेट का रिडक्शन होने वाला है, राइट? ओके, तो वो हम देखने जा रहे हैं। यीस्टમાં પાયરુવેટનું રિડક્શન CO2 અને ઇથાઇલ આલ્કોહોલમાં થઈ જાય। જોઈએ, જો પાયરુવેટ का फर्स्ट ऑफ ऑल डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन सी, फर्स्ट फेज डीकार्बोक्सिलेशन। यहां से CO2 हम दूर करेंगे। सी दिस CO2 रिमूव्ड फ्रॉम दिस decarboxylation in the presence of, किसका रिडक्शन हुआ? पाइरुवेट का, सॉरी किसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ? पाइरुविक एसिड का। तो एंजाइम कौन सा है? पाइरुवेट डीकार्बोक्साइलेज। जिसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है वही, उसके ऊपर से ही एंजाइम का नाम है, उसके ऊपर से ही उत्सेचक का नाम है pyruvate decarboxylase. The enzyme which is responsible for decarboxylation is pyruvate decarboxylase. This enzyme is responsible for this. And cofactor अगर हम बात करें तो magnesium is also present as a cofactor. And TPP, that is thiamine pyrophosphate. Yes, TPP. Pyrophosphate. Okay, see. This is called Zymes complex and that is discovered by Buchner. ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये क्या है? जाइमेस कॉम्प्लेक्स। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको हम जाइमेस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज और मैग्नीशियम और टीपीपी तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? जाइमेस। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये तीनों को मिलाकर हम बोलेंगे जाइमेस कॉम्प्लेक्स और वो अल्कोहलिक आचरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? सी, मैंने वही लिखा। दैट इज डिस्कवर्ड बाय डिस्कवर्ड, ये तो होना ही है, देखो, डिस्कवर्ड बाय बुचनर। शोध कोना द्वारा થઈ છે? बुचनर द्वारा। जाइमेस कॉम्प्लेक्स, राइट? जाइमेस कॉम्प्लेक्स में ऐसे लिखूं गुजराती में, बोलो, समझ आएंगे ना आप लोग? जाइमेस कॉम्प्लेक्स, ऐसा कैसा लगेगा? है ना? चलो, नाउ CO2 तो दूर कर दिया हमने, क्या बचा है देख लो। CH3C और H ही है तो CHO लिख दे। सी, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल था। 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में से क्या हो गया? 1 कार्बन तो दूर हो गया। तो
दो कार्बन ही है, यानी कि 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। यस, ये एसिटाल्डिहाइड बन गया। ओके, एसिटाल्डिहाइड। नाउ सी, ये डीकार्बोक्सिलेशन का फेज कंप्लीट किया हमने। ये 2 मॉलिक्यूल थे, ये भी 2 ही बने हैं। नाउ अब देखते हैं आगे। ये एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। यस, सी, by NaDH2 and this NaDH2 get converted into the NAD। याद है आप लोग को मैंने बोला था कि नेट एटीपी तो 2 ही बने हैं ग्लाइकोलिसिस में, बट हमने बात की थी कि ये NaDH2 को, ये भी एनर्जी रिच कंपोनेंट है। एक NaDH2 में से हमें कितने 3 एटीपी मिलने वाले थे, यहाँ पे 2 यानी कि 6 एटीपी हमें मिलेंगे। बट कब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा? कणाभ सूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में। It has to be enter into the mitochondria to release ATP from it। Yes, NaDH2 को कणाभ सूत्रों में प्रवेशने की जरूरियात पड़ती है अगर इसमें से एनर्जी मुक्त होनी हो तो। बट यहाँ पे तो क्या हुआ, ये NaDH2 यूज्ड अप हो गया, यानी कि हमें कितने एटीपी का लॉस हो गया? 6 एटीपी का लॉस हो गया। इसमें से मिल सकते थे बट अब नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, पता चला। ओके, चलो, रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन ऐड होगा, ये हाइड्रोजन है, इसमें ऐड होगा, रिडक्शन हुआ है एसिटाल्डिहाइड का। लिख रही हूं मैं यहाँ पे CH3, ये CH तो है ही, बट ये 2 हाइड्रोजन आएंगे, यानी कि ये C के साथ मैं लिख देती हूँ 2 हाइड्रोजन, यानी कि CH2। देखो मैं यही कलर यूज कर रही हूँ, आपको पता चला है। और ये तो है ही OH, क्या बन गया? 1 और 2 कार्बन वाला इथाइल अल्कोहल। यस, ethyl alcohol is formed at the end of this reaction। How many molecules? You know that ये 2 थे तो ये भी 2 है। And the enzyme which is responsible for this is ethyl alcohol dehydrogenase। लिख रही हूँ मैं यहाँ पे एंजाइम, dehydrogenase। पता चला यही से इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है किसका? पाइरूवेट का। फर्मेंटेशन, यहाँ पे कोई एनर्जी बनी नहीं, जो एनर्जी बनी थी वो ग्लाइकोलिसिस में बनी थी, यानी कि ये है कि भाई फर्मेंटेशन में कोई एटीपी बनते नहीं है, जो भी बने थे वो किस में? ग्लाइकोलिसिस। बात की थी हमने जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट किया था, है ना, हमने बात की थी कि ग्लाइकोलिसिस इज ओनली द फेज इन विच एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर अजारक श्वसन होगा तो ग्लाइकोलिसिस ही एक ऐसा तबक्का है कि जिसमें एटीपी बनेंगे, यानी कि आथुण में नहीं बनते एटीपी। क्लियर? देखो एकदम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ग्लूकोज जो पाइरूवेट में कन्वर्ट हुए थे 2, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, किसकी प्रेजेंस में? पाइरूवेट डीकार्बोक्साइलेज, मैग्नीशियम, टीपीपी यानी कि थियामिन पायरोफॉस्फेट, तीनों को मिला के बोल देंगे हम ग्लिसाइमेज कॉम्प्लेक्स। 1 कार्बन दूर हो गया, नाउ 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट इज एसिटाल्डिहाइड बनता है, और फिर एसिटाल्डिहाइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ है गर्ल्स, इसका रिडक्शन, बट NAD ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था पहले, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है।
यस, बट ये रिड्यूस्ड फॉर्म था NaDH2, दैट इज रिड्यूस्ड फॉर्म, बट रिड्यूस्ड फॉर्म अगेन रीऑक्सीडाइज्ड इनटू द NaD. यस, इसका क्या हुआ? रीऑक्सीडेशन. गर्ल्स, इसका रीऑक्सीडेशन हुआ. क्लियर? ओके. यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम बात करें तो कौन सा है? NaDH2. ये तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया. अनदर फर्मेंटेशन दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. चलो इसकी बात करते हैं, फिर बाद में देखेंगे हम और भी फर्मेंटेशन. बट टेक्स्ट वाला देखो, ये दिया नहीं है, मैंने जो लिखा है ऐसा फॉर्मूला मीन्स इक्वेशन दिया नहीं है हमारे टेक्स्ट में, बट ये इजी है समझने के लिए, है ना. चलो आगे दूसरा हम देखते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड आथवण. लैक्टिक एसिड अगर नाम आए तो तुरंत ही हमें याद आ जाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, राइट. लैब लैक्टिक एसिड आथवण. yes, it takes place into the some bacteria such as, if मैं एग्जाम्पल लिखूँ यहाँ पे लैब, बायो की लैब नहीं, लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ. ओके. ओके. बैक्टीरिया मीन सम बैक्टीरिया, यानी कि लैब. एग्जाम्पल हमने लिख दिया. पायरुवेट रिड्यूस्ड इनटू द लैक्टिक एसिड. यस, पायरुवेट का रिडक्शन हो जाएगा लैक्टिक एसिड में. सी, फर्मेंटेशन में रिडक्शन होता है. लिखते हैं फिर से. तो मैं पहले ग्लाइकोलिसिस तो लिखूंगी ही, यहाँ पे जो लिखा था ना सेम मैं लिख रही हूँ यहाँ पे. C6H12O6 that is converted into the CH3CO COOH, यानी कि 2 पायरुवेट बने. ओके. ये 2 पायरुवेट, this one is a 6 carbon containing molecule, this one is a 3 carbon containing molecule. You know that during which net ATP अगर हम बात करें तो 2 है, और साथ में कितने हैं? तो 2 NAD किस में कन्वर्ट हुए थे? 2 NADH2. ये हमने लिख दिया क्या? ग्लाइकोलिसिस. यस, लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये तो ग्लाइकोलिसिस ही था. बट नाउ पायरुवेट रिड्यूस्ड इनटू द लैक्टिक एसिड इन अ सिंगल स्टेप. सीधा रिडक्शन ही होना है. यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हुआ एंड देन बाद में रिडक्शन हुआ ना, यहाँ पे सीधा रिडक्शन. चलो, इट इज रिड्यूस्ड इनटू द लैक्टिक एसिड. यस, रिडक्शन. NaDH2 है ना, इसलिए ये, और ये हाइड्रोजन इसमें ऐड करने हैं. लिख रही हूँ मैं CH3, C तो है ही, एक H लिख देते हैं, ये वाला H, अगेन ये O, अगेन ये H आ गया, एंड बाद में COOH. ये 2 मॉलिक्यूल थे तो ये भी 2 ही है. एज इट इज है कार्बन की संख्या अगर हम काउंट करें तो 3 ही है. 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है लैक्टिक एसिड. ये मैंने लैक्टिक एसिड लिखा है. यहाँ पे इथाइल अल्कोहल बना था तो उसके लिए एंजाइम कौन सा था? इथाइल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज. यहाँ पे लैक्टिक एसिड बना है, एंजाइम लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज. लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज.
the enzyme which is responsible for lactic acid fermentation. See, तो ये हमारा हो गया लैक्टिक एसिड आथवण. In both of the fermentation, not much energy is released. Less than 7% of energy is released, and not all of it is trapped into high energy bond of ATP. बात यह है कि दोनों टाइप के फर्मेंटेशन में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, इतनी ज़्यादा शक्ति मुक्त नहीं होती है, और जो भी एनर्जी मुक्त हुई है वो 7% से कम है, और 7% से कम है ऑलरेडी, और उसमें से भी जो 7% से ऑलरेडी कम है उसमें से भी बहुत ही कम एनर्जी एटीपी के बॉन्ड में ट्रैप होती है, यानी कि एटीपी के बॉन्ड में संचित तो होती है, एटीपी के रासायनिक बंध में संचित तो होती है, बहुत ही कम एनर्जी. फर्मेंटेशन की बात की, हमें तो यही ध्यान रखना है कि जो भी रिलीज हुआ था वो ग्लाइकोलिसिस में ही हुआ था. यस, 2 आप काउंट कर सकते हैं, है ना. And you know that reducing agent for both of these is NADH, NADH2, है ना. दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम बात करें तो NADH2 है, और वो रीऑक्सीडाइज्ड होता है इनटू दी NAD. यहाँ पे भी ये रीऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म था, ये रीऑक्सीडाइज्ड हुआ. क्लियर हुआ आपको? बोथ ऑफ द प्रोसेसेस आर हैजार्डस. यार बहुत ही हानिकारक है प्रोसेसेस, ये प्रक्रियाएं हानिकारक है. आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड. यार कोई भी बने, एसिड की बात करो कि अल्कोहल बने, कोई भी आथवण की बात करो, दोनों प्रक्रियाएं कैसी है? हानिकारक है. आपको ये ध्यान में रखना है, अगर अल्कोहल बढ़ गया तो ऑब्वियसली वो यीस्ट के लिए भी हानिकारक है ना. What is net ATP are synthesized when one glucose is fermented to alcohol or lactic acid. कितने बने हैं? एक ग्लूकोज का आथवण होगा तो अंत में कितने ATP बन सकते हैं? कैलकुलेट आप सीधा कर सकते हैं. 2 ATP दोनों में, क्योंकि ये आथवण में तो बनना ही नहीं है कोई ATP. जो भी बने थे वो किस में बने हैं? ग्लाइकोलिसिस में ही बने हैं. अगर हम अल्कोहल की बात करें तो यीस्ट में, यीस्ट में अगर हम बात करें तो यीस्ट poison themselves to that when the concentration of alcohol reaches about 13%. Yes, अगर 13% से ज़्यादा अल्कोहल का निर्माण हो गया है यीस्ट में, तो यीस्ट खुद मर जाएगी. यीस्ट जीवंत नहीं रह सकती है. आप सोचिए then what would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? यार अल्कोहलिक बेवरेजेस आप याद कीजिए, बियर, वाइन, रम, विस्की, उसकी बात कीजिए, उसमें कितने परसेंटेज हो सकते हैं? अगर बियर की बात करें तो बियर में 4.5% से ज़्यादा अल्कोहल मिलेगा. अगर वाइन की बात करें तो 11.6 अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही हूं मैं. ओके, अगर लिक्वर की बात करें तो उसमें 37% होता है परसेंटेज, है ना. अगर वोडका की बात कर ले तो उसमें 40% रहेगा.
हाँ, अगर झीन की बात करें तो 35 to 40% है अल्कोहल। विस्की की बात करें तो 50 मीन्स 40 to 46 जनरली, बट अबव दैट भी हो सकता है, 55 to 60% भी हो सकता है। विस्की में अगर हम बात करें तो 40 to 46%, बट इन सम ज़्यादा 55 to 60। देखो कितना हानिकारक है। अगर आप सोचिए 13% से ज़्यादा यीस्ट में अगर बन गया अल्कोहल तो उस खुद के लिए, यीस्ट के लिए वो लीथल है, यीस्ट खुद मर जाएगी। बट देखो ये सब ड्रिंक में इतना ज़्यादा है, ये कितना हानिकारक है। अगर फ्रूट लिक्वर की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 28 to 32%। हाँ, इवन फ्रूट लिक्वर की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 28 to 32%। से ये सब हानिकारक है। क्लियर? ये तो हमारे जो टेक्स्ट में दिया था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये हमने बात की।